नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूँ आरजे रमेश और वादे के अनुसार रात के और 8 बजे शनिवार की शाम बिल्कुल तैयार लेकर आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ 91.9 फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड एपिसोड 2। फिर आज हमारी जो गेस्ट हैं उनको किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। जब वे गाने गाती हैं तो वे गाने खुद ही सुपर हिट हो जाते हैं। कोलकाता के साथ फ्रेंड्स एफएम के साथ उनका बहुत ही पुराना राब्ता है और हमारे साथ वे इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बातें हो रही है इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सुपर सिंगर, यंगिस्तान की आन बान और शान, निकिता गांधी। हे निकिता, Yay! वेलकम टू। Thank you, Animesh. Only you can give such a beautiful introduction. ओके ओके, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा निकिता, आज मैं आपको बता दूं कि 91.9 फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। কথা কম, গান বেশি। একদম आने ওটা তো वाला জীবনের কনসেপ্ট। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपका होगा और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गाने आप गाएं और हम सब आपको सुने। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करती हैं तो हजारों की संख्या में लोग आपको देखते हैं। उसी तरह आज ये डिजिटल स्टेज है और कोलकाता ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है 91.9 फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पे। তো অনেকগুলো প্রশ্ন আমার কাছে আছে নিকিতা, সেগুলো আমি জিজ্ঞেস করবো, लेकिन वो कहते हैं ना कि शो की शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एकदम। चाहूंगा एक गाना शुरुआत में ही आपकी तरफ से हम सबके लिए। तो I'll start with my latest Bangla song because ironically it's called शुने ने। तो ओके, सबको मैं सुनाना चाहते हैं बताना बिल्कुल। चाहती हूँ कि प्लीज सुनिए और सुनिए। गाना सुनिए और आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए। सो दिस इज गोना बी शुने ने। লুকোনো আছে এক পাশে, লুকিয়ে কেউ বসে আছে, জমানো কিছু ছবিগুলো আজও ধাঁধার মতো ফিরে ফিরে খেলতে আসে। কেন না বলে রাতেতে জেগে উঠি আমি, ভাবালো ভেতরে ভেতরে যে তার নাম না হো না হো শুনে নে শুনে নে আমার গল্প বলা, আমার পরিপাটি হায় ভয়। শুনে নে একটু নিজে অসাধারণ টুইস্টে অসাধারণ, গেয়ে দিলাম। दारुण हो चुका, दारुण हो चुका। मुझे लगता है कि इससे अच्छी शुरुआत 91.9 फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड एपिसोड 2 की हो नहीं सकती है। वेल, एक बार फिर से आपका बहुत ये बहुत स्वागत है निकिता। जब हमने आपको पाया है थैंक तो यू। मैं बीच बीच में आता रहूंगा, ज्यादातर आप ही रहेंगी, मैं सूत्रधार का काम करूंगा, यानी कि थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ करता रहूंगा। निकिता, जानना चाहूंगा बचपन से आप क्या सिंगिंग के लिए, आप इसी तरह से आपने सिंगिंग के लिए अपना कोशिश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से आपके पेरेंट्स रहे हैं, आपने भी मेडिकल पढ़ाई की है, तो ছোটবেলায় কেমন ছিলে, মানে ইন্ট্রোভার্ট ছিলে, টম বয় ছিলে, कैसी थी आप? পুরো টমবয় ছিলাম, এখনো আছি। ओके। আই ওয়াজ দ্যাট কিড, আই স্টিল লাভ, আই থিঙ্ক আই এম দ্য সেম অ্যাজ আই ওয়াজ ওয়েন আই ওয়াজ আ কিড। এখনো লাইক ছোটবেলায় আই লাভ ডুইং এভরিথিং। আমাকে সব কিছু করতে চাই, স্পোর্টস করতে চাই, গান করতে চাই, নাচ করতে চাই, সব মানে এক্সাইটেড চাইল্ড হু ওয়ান্টস টু ট্রাই এভরিথিং। ओके। আই ডোন্ট থিঙ্ক আই ওয়াজ প্রিপেয়ারিং টু বি আ সিঙ্গার। অফকোর্স গান বাজনা শিখেছি ছোটবেলা থেকে, বাট আই ডেন্ট থিঙ্ক কি মানে এই জিনিসটা এত সিরিয়াস হয়ে যাবে, আমার পুরো career path হয়ে যাবে। But I think I've been so fortunate to meet the right people, to be guided by the right people, to get the right kind of support to follow this career, because I know that it's a tough career to pursue. And এখন এই টাইমে মানে লকডাউন যে চলছে আর এত জিনিস যে চলছে পুরো ওয়ার্ল্ডে,
it is a tough industry all the more for artists because মানে অনেকের কাজ পুরো বন্ধ হয়ে গেছে and stuff, but the beauty of art, the beauty of music and any form of art is that it survives everything. And I think আমরা যে ডিজিটাল কনসার্টস করছি and গান বার করছি, আমার অ্যাকচুয়ালি আরো মানে I'm getting time to write my own music and release original music, which is a beautiful process. And I think we should be thankful. Whatever, the world gives us, life gives us, we should turn it into a positive thing. And this situation is giving rise to so many positive things. আজকেই একটা গান রিলিজ হয়েছিল with Asha Audio, which is a collab. It's a Robindra Sangeet যেটাতে আমরা অনেক আর্টিস্টরা collaborate করেছি, and I was so happy to be a part of it. With Asha Audio, that the label is a very sentimental thing for me, কেন কি আমার প্রথম অডিও, রাইট? হ্যাঁ, প্রথম অ্যালবাম যে নজরুল গীতি করেছিলাম, দ্যাট ওয়াজ উইথ দেম। তখন আমি কিছু জানতাম না অ্যাবাউট হাউ দি ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কস, অ্যান্ড আই ওয়াজ স্টিল ইন কলেজ, barely out of school. So it's very nostalgic for me to sing with them, and I feel like I want to dedicate this to Mohuadi and to all the artists who have come together to do this. আমি চেষ্টা করি রবীন্দ্রসঙ্গীত না করতে, কেন কি I'm very scared of রবীন্দ্রসঙ্গীত, but this is a beautiful song, and since I've sung it in the release আজকে, আমি ভাবলাম কি I should sing a few lines for everybody. बिल्कुल। तो सुनना चाहेंगे हम निकिता, एक और गाना आपसे सुनना चाहेंगे, और बता दूं कि बहुत सारे सरप्राइजेस आज रहने वाले आपके लिए शो पे। वो सरप्राइज मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूंगा। तो एक और गाने के साथ अगर आप सुनाना चाहें प्लीज, आपके नए गाने। আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে, এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে, দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে, গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে, এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। बिल्कुल। मैं जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इतने अच्छे अच्छे गानों से आपने शुरुआत की है शो की, तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा एपिसोड है वो सुपर डुपर हिट होने वाला है। निकिता, मैं और भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, जानने वाला हूँ आपके बारे में। हम कई दिनों से बातें कर रहे थे कि आपके साथ बातें होगी, तो बचपन की बातें मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ की है। एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। Oh my God! मैंने बहुत ढूंढ के निकाली है, और मुझे पता है कि इसके पीछे कोई स्टोरी है। क्या बात है! देखिए, आप दिल से I गाती already है, love this interview the most. दिल से गाती है, मैं दिल से रिपोर्टिंग करता हूँ। एकदम एकदम। इस फोटो की कुछ हमारे साथ स्टोरी अगर आप शेयर करें, बड़ी अच्छी लग रही है। मैं ऐसे ही थी, ऐसे ही हूँ। This photo I think was taken in Jaipur. Okay. When my bua, my fufa ji and bua were posted there. So, and my bua's husband, I never have called him fufa ji from my childhood because he was in the army, and he always has had I've seen him in uniform, so I gave him the nickname Tiger Uncle. टाइगर अंकल, ओके। Tiger Uncle. So मैंने बहुत छोटी थी मैं, बहुत like I was this age only, and I gave, and this was second or third time that we met, and we visited them. No, sorry, it was Jodhpur, not Jaipur.
दे वर पोस्टेड इन जोधपुर एंड तो मैंने उनको टाइगर अंकल एक नाम दे दिया. पूरा फैमिली अभी भी उनको टाइगर अंकल ही टाइगर, बुलाते हैं. क्या बात. That's become his lifelong name. Even whether you are his niece, nephew, or you are the next generation or generation above, everybody calls him Tiger Uncle. And so this was, and I was very fascinated by him. तो मैं उनका बेल्ट ऐसे सैश के जैसे पहन के, उनका टोपी पहन के घूमती थी, और ये वहाँ का एक पिक्चर है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शरारती रही हैं आप. मैं आपके फोटोज को देखकर बता सकता हूँ, बहुत सारे पिक्स मेरे पास इस वक्त हैं. और मैंने देखा है कि एक और पिक आपको मैं दिखाना चाहूंगा, उसके बाद एक और गाने में हम जाएंगे. पहली तस्वीर, पासपोर्ट साइज फोटो निकिता गांधी की. देखिए इनकी चिक्स, देखिए आप. पहली तस्वीर थी, स्कूल की तस्वीर है ये, राइट? हाँ, ये आई थिंक मॉन्टेसरी या नर्सरी का पिक्चर होगा, मतलब प्री स्कूल. ओके, क्या बात है. इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है आज निकिता हमारे साथ शेयर करने वाली है. पुरानी यादों की बातें करेंगे, लॉकडाउन के दौरान क्या क्या किया निकिता, सब कुछ हम जानेंगे. बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त हमारे फ्रेंड्स एफएम फेसबुक पेज पर चल रहा है. बातें हो रही है 91.9 फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग की. हमारी स्पेशल गेस्ट निकिता गांधी आज हमारे साथ है. निकिता, আরেকটি গান আমরা শুনবো, যে কোনো একটা গান প্লিজ. আরেকটি গান, তাহলে এই গানটা আমি জিমিকে ডেডিকেট করতে চাই, বিকজ ওয়েল অ্যাকচুয়ালি ফ্রেন্ডস এফএম কে ডেডিকেট করতে চাই, তোমাকে ডেডিকেট করতে চাই, দ্য হোল ফ্যামিলি, বিকজ ইউ গাইজ আর রিয়েলি স্পেশাল টু মি. আই থিঙ্ক যখনই আমি কলকাতা যাই, I always visit your, like it's like বাড়ি যাবো, চা খাবো, ভাড়ের চা খেতে হবে, বাড়ি যেতে হবে, আধা দিন ধাবার খাবার খেতে হবে, আর फ्रेंड्स एफएम ऑफिस যেতে হবে. पुराना राब्ता है, पुराना रिश्ता है हमारा. एकदम एकदम. और मैं स्पेशली जिमी, I took his name because he plays this song a lot during his show. So I never have, I think, performed this song live. So I thought कि उनके लिए मैं स्पेशली एक डेडिकेशन करती हूँ. देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया. देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया. आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए. वो हमसे हारेंगे, हम बाजी मारेंगे, हम उनसे क्या है कम, नाचेंगे ऐसे हम, नाचेंगे ऐसे हम, नाचेंगे वो क्या. देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया. देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया. ओ क्या बात है, क्या बात है. देखे जरा किसमें कितना है दम. वेल, बता दो कि इस गाने को कल जिमी ने डायरेक्ट दिल से में प्ले किया था,
और बहुत Really? सारे आपके बिल्कुल, और आपके फैंस जो हैं आपसे वही कह रहे हैं, अनिंदो रॉय कह रहे हैं कि यस्टरडे इस गाने को प्ले किया गया था, और बहुत सारे मैसेज आ गए, খুব ভালো পিক, খুব ভালো লাগছে তোমাকে আমরা আজকে फ्रेंड्स डिजिटल लाइव अनप्लग्ड पेয়েছি, शोभिक कह रहे हैं चाइल्डहुड फोटो जो है वो भी काफी पसंद आया शोभिक को। तो इस तरह के मैसेज है, मैं पढ़ता रहूंगा। सभी हाई कर रहे हैं, थैंक्स कह रहे हैं फ्रेंड्स एफएम को इतना शानदार सा ये कॉन्सेप्ट लाने के लिए, यानी कि फ्रेंड्स लाइव। खूब Wow. सुंदर वॉइस है, रजत कह रहे हैं। वेल ऐसी बातें Thank हो you. रही है। निकिता, मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि हम भूतकाल से आ रहे हैं धीरे धीरे करके, पास से करते करते प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, तो फिर ये बॉलीवुड में एंट्री आपकी हुई, अगर आप छोटे से बताएं कैसे हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस में आपने गाने गाए हैं, कन्नड़ में गाए हैं, तमिल में गाए हैं, बंगाली में आपने गाने गाए हैं, इंग्लिश में भी आप गाने गाती हैं, तो ओवरऑल अगर हमारे साथ बताएं कैसे शुरुआत हुई थी आपकी प्लेबैक कैसे सिंगिंग। शुरुआत हुई? वेल मैं कॉलेज में थी, डेंटल कॉलेज में, एंड उस टाइम आई डेंट थिंक, मतलब मैं इतना सीरियसली परस्यू नहीं कर रही थी म्यूजिक, मैं बस लाइक जस्ट रिक्रिएशन के कर रही फॉर्म थी आप? में हाँ। मैं म्यूज़िक परस्यू कर रही थी और क्लासेस में जा रही थी, और ए आर रहमान सर के स्कूल में पार्ट टाइम कोर्स कर रही थी, एंड वहाँ से आई थिंक द सीरियस जर्नी की शुरुआत हुई, क्योंकि उनके साथ मुलाकात हुई, एंड आई सैंग इन वन ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स। राइट। फिर उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, फिर उनके एक साउथ इंडियन फिल्म आई, जो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी, तो उस फिल्म में मैंने गाया। तो पहला ब्लॉकबस्टर गाना तमिल में था, बहुत कठिन था, बहुत सारे शब्द थे, पहली बार मैं फिल्म में, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट में गा रही हूँ, सो इट वाज क्वाइट अ क्रेजी चैलेंज आई वुड से, बट इट completely changed my life. उसके बाद शुरू हुई एक के बाद एक बैक टू बैक प्लेबैक सिंगिंग आपने किया, और अभी तक जिस गाने में आप गाती हैं वो गाना सुपर डुपर हिट होता है। स्पंदन कह रहे हैं कि वो एक गाना चाहते हैं कि आप गाएं कोविड वॉरियर्स के लिए, যে কোনো একটা গান अगर आप डेडिकेट कर दें, जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो 24 आवर्स लगे हुए हैं हमारी हमारी रक्षा के लिए इस वक्त काम किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, जो वर्कर्स हैं, जो केएमसी हाँ के जी। हैं कोलकाता की, अगर हम बातें करें, तो आप कुछ उनके लिए कोई अगर गाना डेडिकेट करना चाहें। I think আমার যা মনে হয়, the one song to me which is the most special, and I think ironically घर रहना और लॉकडाउन में बंद रहने से, मतलब काफ़ी इनडायरेक्टली सिंबॉलिक है, दैट्स खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर तेरा, एंड आई थिंक they are our home right now, all the people who are fighting this situation, and I think we are all fighting the situation in our own way, and we are all saluting those who are medical officers and medical professionals, jo not just them, even डिलीवरी पीपल, सब राइट। रिस्क ले रहे हैं अपना काम करके और बाहर जाके और अपना ड्यूटी करके। हमारे घर के बिल्डिंग में जो दरवान है, आई थिंक सारे बिल्डिंग्स में दे हैव ऑल स्टेड बैक, एंड दे हैव ऑल स्टेड विद इन, कन्फाइन देमसेल्व्स, स्टेड अवे फ्रॉम देयर ओन फैमिलीज to protect us and to stay with us, and I think this is a song I would like to dedicate for all of them. खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा, खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा, घूमे फिरे तू चाहे सब शहर, तू है मेरा, घूमे फिरे तू चाहे सब शहर, तू है मेरा, खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा, खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा, मुझ में कब से लिखा हुआ तेरा ही नाम है, मुझ में जो है मेरा सभी
तेरा ही नाम है चाहत भी, तू मेरी और आँख भी है मेरा चाहत भी, तू मेरी और हक भी है मेरा, खाली है जो तेरे बिना मैं वो घर हूँ तेरा, खाली है जो तेरे बिना मैं वो घर हूँ तेरा, मैं वो घर हूँ तेरा, घर हूँ तेरा। Animesh, you're muted. इस गाने को सुनाने के लिए थैंक यू सो मच निकिता। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि Thank you. जितना हम उनको सल्यूट करें, जितना हम उनको थैंक्स करें, वो कम है। वेल निकिता, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आज शो पर बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं। एक और सरप्राइज मैं आपको देने वाला हूं। कोई है जो आपसे बातें करना चाहता है, कुछ Okay. कहना चाहता है आपको? Hi. Hey, how are you? Good. Hi. Hi, Ma. बता दें कि इस वक्त हमारे साथ है नन अदर देन मिसेज नीपा गांधी, मदर ऑफ निकिता गांधी, जिनके साथ हमारी बातें इस वक्त हो रही है। वे बिल्कुल हमारे साथ लाइव आ गई हैं और कुछ कहना चाहती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहेंगी? निकिता इस वक्त मुंबई में है, आप इस वक्त कोलकाता में है, पूरा वर्ल्ड आप दोनों को इस वक्त देख रहा है। कुछ कहना चाहेंगी मैम? बस यही कहना है कि सब खुश रहे, सब सेफ रहे। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज निकिता जहाँ पर है बॉम्बे में तो काफी केसेस हो रहे हैं, बट दे हैव बीन वेरी केयरफुल, व्हिच इज गुड. But one thing I would like to tell, I would ask Nikita to tell your fans about कि तुमने जो just before lockdown से पहले जो तुमने अपना स्टूडियो बनाया था, दोनों मिलकर हाथ से खुद बना के, you know, like you did a lot of hard work, उसका अभी तुमको फल मिल रहा है, because you did so much of hard work. अपने हाथों से तुमने अपने वो planks लगाए and all. You should tell your friends and everybody about this. बताओ क्या किया तुमने? बिल्कुल, ये हम सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच निपा मैम, हमारे Thanks, Ma, for. सो मच। वेल निपा मैम ने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। निकिता, हम सब जानना चाहेंगे, जैसे कि मैंने देखा है आपके फ्रेंड्स आपके पेज पर देखा है, फेसबुक पेज पर देखा है कि आपने पूरा सेटअप किया अपने घर में, तो बताना चाहेंगे इस सेटअप के बारे में? कुछ हमारे साथ शेयर करें अगर। I think last year, almost exactly this time. Almost exactly this time. In fact, क्योंकि you know फोन पे 1 year ago का एक नोटिफिकेशन आता है, तो 1 साल पहले ही इसी मंथ में हम लोग मिलजुल कर हम लोग मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स, एक फ्रेंड जो जिसको पता है मतलब स्टूडियो के बहुत का बहुत नॉलेज है, हम लोग मिलजुल कर ये स्टूडियो बनाए जहाँ पे मैं बैठी हूँ, और अपने हाथों से बनाए, बिकॉज यूजुअली यू गेट somebody टू मेक इट, बट वी रियली वांटेड टू। आई थिंक दिस इज माई फल्ट কেন কি আমার ভীষণ ভাল লাগে সব কিছু নিজে করতে। তো বিকজ অফ মি বেচারা দুজনকে অনেক অনেক খাটনি করতে হলো, বিকজ when you make a studio and you make panels, it's a very difficult process, because এক তো মানে পুরো কার্পেন্ট্রির কাজ, প্যানেলের পুরো ইউনো ফ্রেম ইজ মেড অফ উড, তো পুরো অ্যাঙ্গেল নিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে লিটারালি উই মেড ইট ফ্রম স্ক্র্যাচ ফ্রম পিসেস অফ wood, but the packing in the panels is made of rock wool, and that is very itchy. তো মানে বাড়িতে 2 মাস our house was a mess, because এত বড় বড় স্যাক্স, মানে 5-6 ফুট লং বড়, এত মানে ইউনো রিয়েলি বিগ স্যাক্স লিভিং রুমে পড়েছিল, ফিল্ড উইথ রক উল, অ্যান্ড ইটস ভেরি ইচি, ভেরি ভেরি ইচি। তো এক পুরো মাস we were just like working all day on the panels, and then চান করছি কিন্তু ওই সেন্সেশনটা যাচ্ছে না। तो मैंने जो है वो रंग लाई है। स्टूडियो काफी अच्छा लग रहा है, और इस वक्त आप मैं देख पा रहा हूँ, और हमने ऑफ एयर भी जब बातें की थी काफी कुछ जानने को मिला। निकिता, एक और गाना हम सुनना चाहेंगे। श्योर।
आप बताओ क्या सुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब राब्ता हो जाए, क्योंकि बहुत देर से मैं राब्ता वही लेकर सोच रही मैं थी तीन और चार बार आप मैंने आपको हिंट दे दिया राब्ता हिंट का। दिया है। बिल्कुल, हम सब सुनना चाहते हैं, आपके फैन सभी सुनना चाहते हैं, सभी सोच रहे श्योर हो श्योर श्योर, कब गाएंगे राब्ता आप। cool. This is dedicated to all of you for joining in on Friends FM live unplugged and so happy to be here. तुझसे किया है दिल ने बयां, किया निगाहों को जुबान, वादा वफा का किया, तुझसे लिया है खुद को मिला, लिया दुआओं का सिला, जीने का सपना लिया, दिल के मकान में तू मेहमान रहा, आंखों की जुबान करे है बयां, कहाँ कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे है ये तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता, राबता, मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नज़ारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर का जैसे कोई इशारा मिला, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे है ये तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता, ओ हो बिल्कुल निकिता, मैं बताना चाहूंगा सिर्फ कोलकाता से ही नहीं, आपके फैंस के साथ आपका बहुत पुराना राब्ता है, एक बहुत पुराना रिश्ता है जो और स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप गाने गा रही हैं फैन फॉलोअर्स आपके और बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आप गाने गा रही हैं। लेकिन मैं राब्ता के बारे में कुछ सवाल है मैं जानना चाहूंगा, राब्ता ये जब आपको बताया गया कि टाइटल ट्रैक आपको मूवी राब्ता का गाना है, तो कैसे ये गाना मिला था आपको, अगर हमारे साथ शेयर करें किस तरह से आपने इसकी तो प्रिपरेशन की ये थी। एज यू नो इज वाज माय फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग। मैं बॉम्बे में तब तब आयरॉनिकली आई वॉज नॉट लिविंग इन बॉम्बे, आई वॉज स्टिल लिविंग इन चेन्नई, और मैं आती जाती थी बिकॉज कई प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए हम लोग को भेजा जाता था टू बॉम्बे, एंड ऑल्सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स शिफ्टेड टू बॉम्बे, सो आई केप्ट कमिंग टू मीट देम एक्चुअली। और जब भी मैं आती थी तो अगर यू नो मैं मेरे उनका जो मतलब प्रीतम दा के स्टूडियो में जो कोऑर्डिनेटर था उसके पास मेरा नंबर था, सो शी वुड कॉल मी यू नो एवरी टाइम देयर वुड बी सम स्क्रैच और समथिंग, अगर मैं थी बॉम्बे में तो मैं आके डब कर लेती थी। सो आई हैड संग अ फ्यू ऐसे ऑन ऑफ स्क्रैचेस ऑफ डिफरेंट सॉन्ग्स, एंड देन एक दिन मैं गई थी और कुछ और गाने के लिए बुलाया गया था जो जिसमें मेरी आवाज़ नहीं निकली, बट उस गाने के लिए ऑडिशन करने के लिए बुलाए थे स्टूडियो में, और उस जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गया तो मुझे ये इस गाने के लिरिक्स शीट दिया मुझे, और मैं देख के सोच रही हूँ ये तो गाना ऑलरेडी निकल चुका है। हाँ। और बोले कि हम लोग एक यू नो एक रिप्राइज वर्जन बन रहा है फॉर अनदर प्रोजेक्ट, वी वांट टू ट्राई योर वॉइस।
never in my life did I think, like from the day I sang that, like got that sheet, till the day it released in my voice, I did not once think it would release in my voice, because I always assumed कि इतना बड़ा song है already, जो अरिजीत सिंह ने ऑलरेडी गाया है, श्रेया घोषाल की आवाज़ में भी एक वर्जन है, बहुत सारे वर्जन्स हैं एक्चुअली इस गाने के, और ऑलरेडी इतना सेलिब्रेटेड गाना है. आई नेवर अज्यूम्ड, रिकॉल काफी था उस गाने का, रिकॉल काफी था. एब्सोल्युटली. और आई नेवर अज्यूम्ड कि एक नए आवाज को जो कभी यूज भी नहीं हुआ है बॉलीवुड में, उनको चांस मिले फॉर अ सॉन्ग लाइक दिस. सो आई रियली फील सो ब्लेस्ड टू मीट दादा, टू मी, एंड आई थिंक अ बिग थैंक यू टू द फिल्म प्रोड्यूसर एंड द फिल्म डायरेक्टर, क्योंकि उनके कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिल्म में. And he really wanted my voice to be there in the song. He didn't care whether I was a known name or not. So I think that's so important when the people in power, when the people in power and the decision makers, they introduce and they give way to new voices. I think it's such a beautiful thing for people like us. बिल्कुल सही कहा है. वैसे निकिता, क्या हम कह सकते हैं कि आपके करियर की जो टर्निंग पॉइंट थी, यानी कि काफी कुछ बदल गया था, वो राब्ता था, हम कह सकते हैं? एकदम. राब्ता ने काफी कुछ बदल दिया. उसके बाद बॉलीवुड के एक के बाद एक आपने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं. तो ये मुझे बताइए, उल्लू का पट्टा जो गाना है, जब आपको नाम बोला निकिता आपको गाना गाना है उल्लू का पट्टा, हाँ. तो ये कहाँ से आया है? ये नाम जब आपने सुना, आपके दिमाग में क्या चल रहा था निकिता? मैं तब उस गाने का नाम था हनी. जब ये गाना तब मतलब जब बन रहा था तो नाम फिक्स नहीं हुआ था कुछ. गाने का प्रोसेस होता है बनना, और लिरिक्स चेंज होते रहते हैं, अप्रूवल के लिए आते जाते रहते हैं. तो द सॉन्ग कीप्स मोल्डिंग. सो व्हाट द ऑडियंस हियर्स इज ऑलमोस्ट नेवर व्हाट द सॉन्ग इज इन द बिगिनिंग. सो इट्स एक्चुअली सो मच फन टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ सॉन्ग. जैसे जगा जासूस, द प्रोजेक्ट इन जनरल, वो फिल्म भी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए. इट हैपेंड अराउंड द सेम टाइम एज राब्ता. उसी टाइम ये गाना भी रिकॉर्ड हुआ था और सेम महीने में निकला था उल्लू का पट्टा. और दिस इज वन सॉन्ग विच आई हैव संग द वे आई वुड सिंग अ सॉन्ग, विदाउट एनी काइंड ऑफ brief. Like my brief was just sing like Nikita. So that was really fun for me because I did not have to modulate, because हर गाने में थोड़ा modulate करना पड़ता है, for the song. So they were like, जो करना है करो अपने अंदाज में, गाओ. So that's the story of उल्लू का पट्टा. और गाना तो मस्त है ही, और हम सुनेंगे भी एक दिन. और आज मैं यूकेलेले में गाऊंगी. क्या बात है. चलो. कंफ्यूज है दोस्ती पे इसे एतबार आता है, रंग में दोस्ती के जो भंग घोल दे, इश्क का भूत सर पे सवार आता है. निगल सके नहीं उगल सके, संगमरमर का बंगला बनाता है, दिल अकबर का पोता है. जाना ना हो जहाँ वही जाता है, दिल उल्लू का पट्टा है. उल्लू ले लहू लहू, उल्लू ले लहू लहू, उल्लू ले लहू लहू, उल्लू ले. जाना ना हो जहाँ वही जाता है, दिल उल्लू का पट्टा है. फूटी तकदीर क्यों आजमाता है, दिल उल्लू का पट्टा है. पापा रता नहीं. क्या बात है. ये एक ऐसा गाना है जो एक बार सुनेगा वो इसे भूल नहीं पाएगा, वो इसे जरूर गुनगुनाएगा. इसीलिए ये गाना इतना हिट हुआ, आपकी आवाज को इतना पसंद किया गया और काफी अच्छा लगा. मुझे निकिता ये बताइए कि आप जिस गाने को गाती हैं वो गाना अपने में ही एक यादगार गाना बन जाता है. एनर्जी आप जब स्टेज पे परफॉर्म करती हैं, एक अलग ही एनर्जी में रहती है. इतनी एनर्जी कहाँ से आप लाती हैं? क्या है इसका मंत्रा, क्या है, कहाँ से ये इतनी एनर्जी? देखो, मैं आज रहती है, स्माइल कैसे करती हैं और कहाँ से? The secret to my energy is that I'm half Bengali and half Punjabi.
हाँ, ये So सबसे both बड़ी है। are और very बंगाली very के I think high energy level clans. बिल्कुल, और बंगाली की अगर बातें हो तो माछे झोल तो होना ही चाहिए। माछे झोल एक Oh, रीजन है। अटके कनेक्शन होना चाहिए ना, इंटरव्यू एंड गाने में कनेक्शन। माछे झोल अब आपके लिए, सब हम सब के लिए। ওকে একটুখানি গাইছি মাছের ঝোল তাহলে প্রবলেম ইজ এই গানটা গাইলেই খিদে পেয়ে যায় हाँ, ये तो है। वैसे डिनर का टाइम हो रहा है। পেটের চিন্তায় কাছে 12 মাস বোরিং জীবন মজার অক্টোপাস সেই মজায় আমিও আছি সুযোগ এলে সুযোগ আসে হই সবাই চাইছে কিন্তু পাচ্ছে কই তাই কেমন চুপসে আছে কলা পাতা দিয়ে রেখে ঢেকে চলো না রেসিপিতে কিছু পাওয়া গেল না নুনে আর হলুদে মিশে স্বাদ আর বাড়ে এসে তু চাই আমি কি পারবো বানাতে বাঙালি মাছের ঝোল বাঙালি মাছের ঝোল বাঙালি মাছের ঝোল বাঙালি 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 মাছের ঝোল বাঙালি মাছের ঝোল বাঙালি মাছের ঝোল বাঙালি বাঙালি জমে গেছে বস, আজকে এই ইন্টারভিউটা জমে গেছে। আই থিঙ্ক আমাকে দাল মাখনির একটা গান গাইতে হবে তাহলেই ইকুয়াল হয়ে যাবে इक्वल हो जाएगा बस। पंजाबी और ये बंगाली कॉम्बिनेशन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके निकिता, मैं जानना चाहूंगा, अब थोड़ी सी हम बातें करेंगे, अभी जो समय जा रहा है इसके बारे में बातें करेंगे। निकिता, आपको क्या लगता है ये लॉकडाउन का जो वक्त जा रहा है, इसके बाद म्यूजिकल इंडस्ट्री कितना कुछ चेंजेस आप देख पाएंगे? आपका क्या टेक है इसके बारे में? क्या लगता है कितना कुछ बदलाव होगा? न्यू नॉर्मल जो है वो कैसा रहेगा? New normal, I think it will be a phase. Kyanoki, I think everything will go back to the way it was. Probably not this year, kintu maybe a year or max 2 years later. But the new normal for now is digital, of course, and বাড়িতে বসে শর্টস পরে আর ওপরে সেজে গুজে গাইবো, গিগস করবো। ऐसे पता चला निकिता आपको ये बात। নিচে পাজামা পরে থাকবো, নিচে বাড়ির পাজামা পরে থাকবো আর ওপরে ভালো টপ পরে থাকবো। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हाल है। ओके, इसके बारे में बाद में हम बातें कर लेंगे। ओके, बिल्कुल सही कहा। डिजिटल जो है अभी इस वक्त जो समय है वो डिजिटल का ही समय है। इसीलिए आप आज हमारे साथ हैं फ्रेंड्स डिजिटल लाइव अनप्लग में, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। वेल, इतने सारे मैसेज जो है इस वक्त फ्रेंड्स के फेसबुक पेज पे आ रहे हैं। वेल, इनको मैं अलग से भी थोड़ी देर में पढ़ने वाला हूँ, और मैं भी पढ़ने वाली हूँ लाइव के बाद। मैं सब पढ़ने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए। वेल, वैसे मैं निकिता जानना चाहूंगा आपसे, इसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, तो आपने कहा कि ड्यूरिंग ये लॉकडाउन के समय आपने बहुत सारे गाने भी लिखे हैं, आपने कुछ प्रिपरेशन की थी, तैयारियां की थी, कुछ हमारे साथ शेयर करें कैसा रहा ये लॉकडाउन के दौरान? आपने अपने अंदर से क्या क्या चीजों को आपने ढूंढ के निकाला? तो मैं एक क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ. वन इज आई एम वर्किंग ऑन एन एल्बम विद अ फ्रेंड. आई एम वर्किंग ऑन लॉट ऑफ सिंगल्स विद डिफरेंट लेबल्स. सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, like you aapne pucha ki you know what is the situation new normal going to be. One thing that is going to be is the surge and the emergence of independent music, because films काफी दिन postpone हो जाएंगे and you know अभी production सब shooting बंद है और अभी I think fresh music निकल रहा है. I really enjoy the fact that new artists and new music is coming out from singer songwriters and independent artists. And I would of course আমি দেখতে পাচ্ছি না comments and কত লোক আছে and কারা কি বলছে, কিন্তু I would like whoever is watching this on Facebook and whoever watches this later on, I would just like to tell you two things. One, I would request you to support independent artists. I know we all listen to artists from all over the world, but support your local artists, because there are some amazing musicians, and I'm not saying that because they need support. I'm saying that because they need to be heard, because they are amazing. And there are so many there's so much new music that's going to come out, that is coming out. प्लीज़ आप लोग सारे जो न्यू आर्टिस्ट न्यू गाने रिलीज़ हो रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए
और दूसरी बात, मैं भी उनमें से एक हूँ और मैं भी रिलीज कर रही हूँ इंडिपेंडेंट कंटेंट. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज वॉचिंग दिस लाइव टू प्लीज गो टू माई यूट्यूब चैनल and to subscribe and to because not because I want you to subscribe but because there's a lot of new music that's going to come out, because I've been working very hard through the lockdown to come up with the music. And if you guys enjoy my Bollywood music and my singing, I really hope that you show some love to the songwriter and the musician in me. So बिल्कुल निकिता गांधी के आप YouTube चैनल पे जा सकते हैं और जल्दी जल्दी जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए. वैसे निकिता, कुछ अगर हमारे गाने अगर सुनाए आपने लॉकडाउन के दौरान हाँ लिखे जी. कुछ सिंगल सॉन्ग्स आप कुछ सुनाना चाहेंगे? तो अभी मैं एक गाना जो बहुत बार रिक्वेस्ट पे आए हैं ऑन वेरियस लाइव्स, एंड आई डोंट थिंक आई এভার প্রিপেয়ার্ড দ্য সং. এই গানটা ভীষণ সুন্দর একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত, যেটা আমি একটা বইয়ে গেছি অ্যান্ড আই লাইক ইটস কোয়াইট ইউনিক সং আই উড সে. অ্যান্ড অনেকবার রিকোয়েস্ট এসেছে টু সিং দ্য সং, অ্যান্ড আমি অ্যাকচুয়ালি রিসেন্টলি একজন বন্ধুর সাথে কোলাবরেট করে এটা আপলোড করেছি. সো ইউ গাইজ ক্যান লিসেন টু দ্য অ্যাকুস্টিক ভার্জন উইচ ইজ অন ফেসবুক অ্যান্ড এভরিওয়্যার. কিন্তু তার ছাড়া আই থট আই উইল পারফর্ম দ্যাট ফর ইউ গাইজ. দিস ওয়ান ইজ কল্ড খাঁচার পাখি. খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে, একদা কি করিয়া মিলন হলো দোহে, কি ছিল বিধাতার মনে. বনের পাখি বলে খাঁচার পাখি ভাই, বনেতে যাই দোহে মিলে. খাঁচার পাখি বলে বনের পাখি আয়, খাঁচায় থাকি নিরিবিলে. বনের পাখি বলে না বনের পাখি বলে না, আমি শিকলে ধরা নাহি দিব. খাঁচার পাখি বলে হায়, আমি কেমনি বনে বাহিরিব. আহা পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে, একদা কি করিয়া মিলন হলো দোহে, কি ছিল বিধাতার মনে. দারুন দারুন Thank you. সুপার সুপার নিকিতা, অনেকগুলো প্রশ্ন চলে এসেছে. দু চারটি প্রশ্ন তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করে নি আমাদের ফেসবুক পেজে. কলকাতা স্ট্রিট ফুড, रिंकू दास पूछ रही है कोलकाता स्ट्रीट फूड झालमुड़ी आलू काबली पुचका फेवरेट कौनटा? पुचका. अच्छा, मैं बता दूं कि उधर नीपा मैम आपके सब सवालों के जवाब वो दे रही है फेसबुक पे. क्या बात है, थैंक यू माँ. वो सब ज्यादातर आंसर्स वो दे दिया. अच्छा, टाइसन पॉल जो है वो इस वक्त बैंगलोर से देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको एक बार हाई कर दो और उनको कोई भी एक गाना, हाय, कोई भी स्टार्टिंग से है, कोई भी एक गाना आप अगर उनको डेडिकेट करना चाहे. वो बोल रहे हैं कि प्लीज मुझे गाना सुना दो. Sure. I'd like to dedicate which song? How much time do we have? Do we have time for one song or two? আছে একদম. তাহলে I will. ওরে বাবা, অনেকগুলো. चलचे चलबे आपको हमने पाया है, हम इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे. हम चाहेंगे कि आप और गाने गाएं प्लीज. Since you said this, and I would request all of you, it's a Saturday night. I think we all deserve some happy time and some party time. अपने घरों में सेफ रह के पार्टी करो. इस लाइफ के बाद भी आई थिंक आपको वर्चुअल पार्टी करना है या घर में बैठ के चिल करना है, चिल करो. एंड सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस नेक्स्ट सॉन्ग टू यू. सोचो ना
देखो तो देखो ना क्या हुआ इत्तेफाक से, लम्हे जो होते हैं मिलते हैं फिर यहाँ इत्तेफाक से। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। सोचो ना देखो तो देखो ना क्या हुआ इत्तेफाक से, लम्हे जो होते हैं मिलते हैं फिर यहाँ इत्तेफाक से। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। बिल्कुल इत्तेफाक से नहीं, हम पूरी तरह से चाहते थे कि निकिता आए हमारे इस एपिसोड में, यानी कि फ्रेंड्स डिजिटल लाइव अनप्लग्ड का हिस्सा बने। और इससे अच्छी शुरुआत हमारे इस इवेंट की, इस शो की नहीं हो सकती है। काफी अच्छा रिस्पांस जो नजर आ रहा है। सेकंड एडिशन मतलब सेकंड एपिसोड है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। निकिता, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि गाने तो आप एक के बाद एक अच्छे अच्छे गा ही रही हैं, तो परफॉर्मेंस भी आपने वर्ल्ड में सब जगह किया है। कहीं की ऑडियंस जो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय जा रहा है, आप पहले जैसे समय जो है वो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ यादें अगर हमारे साथ शेयर करें जब आप परफॉर्म करती थी, परफॉर्म किया है आपने जब लॉकडाउन के पहले, कुछ हमारे साथ कुछ क्रेजी फैंस आपके हो जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। फैन एक्सपीरियंस तो आई थिंक ऑफ द लेटर शोज, मतलब নতুন যে লাস্ট ফিউ সিজনে শোজ করেছি, আই থিঙ্ক ওয়ান রিয়েলি স্পেশাল পারফরমেন্স অফ মাইন ওয়াজ আ শো আই ডিড ইন উদয়পুর, which was a huge audience, and it was for the Udaipur World Music Festival, which I was headlining, and it was a huge opportunity for me also to headline such a big festival. और इतना अच्छा response था, and if anybody is watching from that festival, if anyone who was there is watching this live right now, I'd like to thank you so much, because as a performing artist, the vibe that you get, the energy that you get is so important for your performance. It's not just, if your voice is good that day or not. And the funny thing is, I was sick that day. मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी उस दिन, लेकिन स्टेज पे आती इतना मज़ा आया, क्योंकि लोग इतना प्यार दे रहे थे और इतना positive energy मिल रहा था that I didn't even know at that, like, and it was very cold out there. So I didn't... For that 1 hour, I didn't feel like I was sick at all. And I think that is the beauty of performing live. And there have been many performances like this where I felt that kind of energy. और I think एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छे आर्टिस्ट की ये पहचान भी होती है, जब वो ऑडियंस को देखते हैं, अपने फैंस को देखते हैं, तो उनके अंदर में एक अलग सी एनर्जी आती है, और वो एनर्जी आप में है, हमने देखा है, अभी भी हम देख पा रहे हैं कि पूरा आज के शोটা পুরো জমে গেছে, দারুণ হচ্ছে। तो आप अगर उन सबको डेडिकेट करना चाहें एक गाना जो उस कॉन्सर्ट में थे, कोई भी एक गाना अगर आप उनको डेडिकेट करना चाहें। Maybe I got a lot of good response for this one song which I sang in the film Mitro, so maybe I'll sing a little bit of that. All right. दिल ये हवा में उड़ने लगे हैं, हुआ पराया जी, आधे है जागे आधे है सोए, कहाँ ले आया जी। दिल ये हवा में उड़ने लगे हैं, हुआ पराया जी, आधे है जागे आधे है सोए, कहाँ ले आया जी। जब से तुम मिल गए मौसम खिल गए, खुद से लड़ने लगे, हम संवरने लगे।
Pararanda tararande सवरने लगे हो सवरने लगे. क्या बात है निकिता। मैं अभी तो फिलहाल बस आपको कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा आओ कभी कोलकाता में। अरे 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 जल्दी जल्दी कोलकाता में आओ, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं चाहूंगा कि निकिता जल्दी जल्दी कोलकाता शहर आए, एक बार फिर से स्टूडियो में बैठ के ढेर सारी हम बातें करेंगे। इशारा तो समझ गई होंगी आप निकिता। एक आओ इशारों कभी। इशार ये गाना बोल रहा हूँ. हाँ वो भी सुनेंगे, और आओ कभी हवेली में। Okay, हवेली तो कैलकाटा है ही, तो आई कैन नॉट से नो टू दिस सॉन्ग एंड टू दिस रिक्वेस्ट. आओ आओ ना बेब आओ आओ ओ ओ आओ आओ ना बेब आओ. आज रात का ड्रेस कोड है लाल चोली में आंख में चोली. बन जाऊं मैं अनुष्का और तू बन जाए कोहली. पर लगन तू लट ए एफ तू बन ठन आज ए सैप तू. कहते आए हम 2 फरवरी से निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से. तनिक आओ कभी हवेली पे 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 आओ आओ ना बेब आओ आओ ओ ओ आओ आओ ना बेब आओ कभी हवेली आओ आओ ना बेब आओ आओ ओ ओ आओ आओ ना बेब आओ कभी हवेली पे. बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ी देर पहले मजाक कर रहा था, लेकिन मैं चाहूंगा निकिता आप जल्दी जल्दी सब कुछ नॉर्मल होने के बाद आप कोलकाता आए। ढेर सारी बातें आपके साथ और भी करनी है। बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ 1 घंटे तक जुड़ी रही, और ये थैंक था यू. फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड का एपिसोड 2। जाते जाते अपने फैंस से कुछ कहते हैं ये निकिता, क्या कहना चाहेंगे उन सभी? आई थिंक जाते जाते कोई मेरी बातें तो सुनना नहीं चाहता है, आई एम श्योर. तो मैं बस आपको थैंक यू बोलूंगी. आई थैंक द टीम ऑफ फ्रेंड्स एफएम. आई एम डूइंग अ लाइव एक्चुअली आफ्टर क्वाइट अ फ्यू डेज एंड इट फील्स सो गुड टू इंटरैक्ट एंड टू बी हियर विथ यू गाइज. एंड তোমরা তো আমার জন্য family, not just friends. So I'd like to end with a song. I think that's all I would like to do. Thank you guys for joining in. गोदी में पहाड़ियों की उजली तो पहरी गुजारना. हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे. शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना. हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे. ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है. मुझको तसल्ली है ये के होने तलक रात हम दोनों साथ हैं. संग चल रहे हैं संग चल रहे हैं धूप के किनारे छाँव की तरह. काफिराना सा है इश्क है या क्या है. ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा. काफिराना सा है इश्क है या क्या है. बिल्कुल निकिता, मैं दिल से कह रहा हूँ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि ऐसे ही आप गाते रहे और हम सब मिलकर ऐसे ही आपको सुनते रहे। लेकिन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। You are the best too. And थैंक thank यू you सो मच everybody निकिता, for थैंक यू सो joining. मच। वेल ये था आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ फ्रेंड्स डिजिटल लाइव अनप्लग्ड, और आज हमारे साथ थे नन अदर देन सुपर टैलेंटेड सिंगर निकिता गांधी। एक और एपिसोड नेक्स्ट वीक सैटरडे के दिन सुनना ना भूलिएगा, देखना ना भूलिएगा। रात के 8 बजे एक और सिंगर हमारे साथ होंगे, उनके साथ
एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। और कल रविवार की शाम सितारों के नाम देखना ना भूलिएगा। हमारे साथ होंगे, मेरे साथ होंगे रोहित रॉय, एक्टर रोहित रॉय रहेंगे। बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज उनके बारे में हम जानेंगे शाम के 6:30 बजे, बिल्कुल लाइव फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पर। थैंक यू सो मच निकिता, टेक केयर, थैंक यू ऑल द गाइस, बेस्ट, थैंक थैंक यू सो मच। यू